Good morning. My name is Sarvesh Kumar Singh, and today we are going to study about the Indian philosophy. Indian philosophy है क्या? Okay. Indian philosophy. ये Indian philosophy है क्या? Okay. First of all, we have to think what is philosophy. Okay. So philosophy, basically you can say that philosophy is the study of philosophers. Okay. Philosophers, you can say, like Jainism, there is Jain Mahaprabhu, Jain Swami, and Buddhism, Gautam Buddha naturally, and Sankhya, Kapil Muni, and there were many his followers, and similarly Nyaya Vaisheshika, Gautam and his followers, Sankhya, Kanad and his followers. So similarly in Vedant we have to study three philosophers, mainly three philosophers and their followers. So who are those three philosophers? We have to study Sankaracharya, we have to study Madhvacharya, we have to study Ramanuj, Vishishta Advait, Sankaracharya, Advait, and Madhvacharya, Dvait philosophy. We will study, don't worry, we will study all of this detail, in detailed manner. Okay, so what I want to say is that philosophy is basically, you can say, is the study of philosophers. Okay, all these philosophers we study in philosophy, whether it is Indian philosophy or in Western philosophy. Western philosophy is also more or less same thing. Yani ki we study different philosophers like Plato, like Aristotle, like sophist. In sophist, there were many philosophers. Socrates, we study, and similarly there were Locke philosophy, and Hume, Kant. There were many. यानी कि you can say that philosophy is basically the study of philosophers. Okay, but what does the word philosophy? What does the word philosophy means? Okay, so philosophy is a combination of two words, philo, यानी कि philo, and sophia. These are Greek word. Okay, so what is philosophy? Philo plus sophia. Philosophy is a combination of two Greek words, philo and sophia. Philo means love of, and sophia means knowledge. This sophia means knowledge, or you can say, or wisdom. Knowledge or wisdom. Okay, so philosophy is a combination of two Greek words, philo plus sophia. Philo means knowledge, sorry, philo means love of, and sophia means knowledge or wisdom. Okay, so these are philosophy. But today we will talk about it in Western philosophy. We will discuss in next days. Tomorrow we can discuss. Okay, today we will discuss about the Indian philosophy. Indian philosophy अपना है. It is our own soil. It is the it is the it is the outcome of our own soil. So we should study, I think that we should study Indian philosophy first, and tomorrow, or yani ki just we will give about the introduction, that what are the things that are contained in the Indian philosophy syllabus, and what are the things that are mentioned in the Western philosophy syllabus. Okay, so Indian philosophy we have to study, basically I have not told that Charvaka, Gautam Buddha, Jainism, Buddhism, Nyaya Vaisheshika, and what is called Sankhya Darshan, योग दर्शन, और योग दर्शन के बाद
मीमांसा फिलॉसफी, मीमांसा के बाद वेदांत। वेदांत में हम लोग को बस 3 ही पढ़ना है। और तो हम लोगों ऐसे वेदांत में बहुत सारे फिलोसफर्स हैं, लेकिन हम लोगों को बेसिकली 3 ही फिलॉसफी पढ़ना है। एक शंकराचार्य का अद्वैत, दूसरा विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार्य का, और तीसरा माधवाचार्य का द्वैत फिलॉसफी। ओके, सो फिलॉसफी इज द स्टडी ऑफ फिलोसफर्स। We can यानी कि in broad sense we can say, although it means philo plus sophia. Philo means love of 2 Greek words and sophia means knowledge or wisdom. So philosophy, you can say philosophy as a whole, you can say love of wisdom or love of knowledge. Okay, so this is what the philosophy means. Today तो we will discuss something about the Indian philosophy. Indian philosophy अब है क्या? Okay, Indian philosophy you can say basically is the search for knowledge. Indian philosophy is basically the search for knowledge, that what is true knowledge. Okay, इसी सर्च में समझिए आप कि गौतम बुद्ध ने अपना पूरा घर परिवार, अपना पूरा राजपाट उन्होंने छोड़ के इसी सत्य की तलाश में निकल गए। और इसी तरह हमारे जैन महाप्रभु भी हुए, यानी कि जैन मुनि, तो उन्होंने भी यही किया। उन्होंने भी अपना घर परिवार, उन्होंने भी सिर्फ सत्य को जानने के लिए, यहाँ तक कि राजपाट सब कुछ छोड़ दिया। तो इतना महत्व उन्होंने फिलॉसफी को दिया, इतना महत्व उन्होंने दर्शन को दिया, इतना महत्व उन्होंने ट्रुथ को दिया, सर्च को दिया, ताकि वो सत्य को जान सके, सत्य को पहचान सके, सत्य को अनुभूति कर सके, रियलाइजेशन अबाउट द ट्रुथ कर सके। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स। सो यानी कि महावीर स्वामी, आई वॉज टॉकिंग अबाउट इन जैनिज्म, महावीर स्वामी उन्होंने भी सब कुछ छोड़ दिया जैसे बुद्धिज्म ने, गौतम बुद्ध ने त्यागा था। अब फिलॉसफी इज द सर्च फॉर नॉलेज। तो डिफरेंट फिलोसफर्स हुए ना, तो डिफरेंट फिलोसफर सब नेचुरली है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अलग है। एवरी मैन इज डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर मैन। सो दैट्स वाई every philosophers, they have adopted something different paths from the predecessor or from their contemporaries. That's why this is what makes them different. This is what makes them different, and that's why different philosophies came in our Indian domain, our Indian soil. Okay, and this is our beautiful philosophy of a country is the cream of its civilization. अगर इस क्रीम को निकाल दिया जाए ना, तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, तो सिर्फ दूध में पानी और दूध का फिर टेस्ट भी नहीं रहेगा। फिलॉसफी का इतना ज़्यादा महत्व है। फिलॉसफी, ओके, आई हैव टोल्ड अबाउट फिलॉसफी इज द सर्च फॉर नॉलेज। अब इंडियन फिलॉसफी जो कि है, ये कहता क्या है? इंडियन फिलॉसफी कहता है कि basically you can sum up the Indian philosophy in 4 words, 4 sentence. Okay, there is suffering. सबने एक ना एक तरीके से, एक फॉर्म में, एक तरीके से, और किसी का ज़्यादा, किसी का कम, किसी का इस फॉर्म में, किसी का उस फॉर्म में, सबने अपनाया है क्या फिलॉसफी, यानी कि इंडियन फिलॉसफी में सफरिंग एक स्टार्टिंग पॉइंट है। उन्होंने सब फिलोसफर ने अपनाया कि देयर इज सफरिंग, एंड सफरिंग देयर इज कॉज ऑफ सफरिंग। गौतम बुद्ध के 4 सेंटेंस जो थे, देयर इज सफरिंग, देयर इज कॉज ऑफ सफरिंग, देयर इज सेसेशन ऑफ सफरिंग, एंड देयर इज a path that leads to the cessation of suffering. So similarly we can say that in every Indian philosophy, including the Charvaka, mind the word I am saying, and I will justify it, I will prove it, that Charvaka has also mentioned in his philosophy that there is suffering, although the form may differ, although the quantity may differ, although the quality may differ, but he has also accepted that there is suffering in this world. Okay, और बाकी तो सब फिलोसफर ने एक्सेप्ट किया है, जैसे महावीर स्वामी,
गौतम बुद्ध, सबने किया है एक्सेप्ट कि देयर इज सफरिंग इन द वर्ल्ड। ओके, तो सफरिंग है, तो सबने अपने तरीके से सफरिंग को डिफाइन किया, सबने अपने तरीके से कहा कि ये सफरिंग है, इस तरह का सफरिंग होता है। तो और फिर इसको डिफाइन करने के बाद फिर उन्होंने कहा गया देयर इज कॉज ऑफ सफरिंग। तो सब ने अपने तरीके से, इसीलिए मैंने कहा था कि फिलॉसफी इज द सर्च फॉर द ट्रुथ। तो फिलॉसफी इज द सर्च फॉर ट्रुथ। फिलॉसफी इज द सर्च फॉर ट्रुथ। ओके, फिलॉसफी इज द सर्च फॉर ट्रुथ। तो फिलॉसफी इज द सर्च फॉर ट्रुथ। सबने अपने तरीके से सफरिंग को डिफाइन किया, सबने अपने तरीके से कहा इस तरह सफरिंग है, इस तरह सफरिंग है, सबने उसका, फिर उसने कहा कि देयर इज कॉज ऑफ सफरिंग। ओके, सफरिंग है तो उसका कोई कॉज होता होगा, तो सबने फिर कॉज ऑफ सफरिंग की तलाश किया अपने अपने तरीके से, अपने अपने अनुभवों से, अपने ने जो उन्होंने अपने आप को रियलाइज़ किया, जो एक्सपीरियंस किया, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसके तरीके से उन्होंने कहा कि कॉज ऑफ सफरिंग। ओके, कॉज ऑफ सफरिंग। ओके, तो अगर कॉज सबने अपने अपने तरीके से पहचाना, अपने अपने तरीके से बताया, तो उन्होंने सबने फिर तीसरा जो पॉइंट दिया कि देयर इज सेसेशन ऑफ सफरिंग। ओके, इंक्लूडिंग द चार्वाका। ओके, सबने कहा कि देयर इज सेसेशन ऑफ सफरिंग, इफ इट कैन नॉट बी क्योर्ड इट कैन बी मिनिमाइज्ड, इट कैन बी मिनिमाइज्ड। एंड बहुत फिलोसफर ने ऐसा कहा कि इट कैन बी क्योर्ड परमानेंटली, देयर इज सेसेशन ऑफ सफरिंग। ओके, इंडियन फिलोसफी यानी कि बेसिकली यू कैन से गौतम बुद्धा ने जो कहा 4 नोबल ट्रूथ, उसी में देयर इज सफरिंग, देयर इज कॉज ऑफ सफरिंग, देयर इज सेसेशन ऑफ सफरिंग एंड देयर इज ए पाथ दैट लीड्स टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग। तो बेसिकली इंडियन फिलोसफी एज ए होल अगर हम देखें तो ये 4 सेंटेंस में डिफाइन हो जाता है। सब ने कहा कि देयर इज सफरिंग, ऑल इंडियन फिलोसफी, और फिर उन्होंने कहा देयर इज कॉज ऑफ सफरिंग। ओके, फिर उन्होंने कहा कि देयर इज सेसेशन ऑफ सफरिंग, और सब ने फिर अपने अपने तरीके से कहा कि देयर इज पाथ दैट लीड्स टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग, यानी कि ओके, कंप्लीट क्योर और पार्शियल क्योर और मिनिमाइज्ड और कंप्लीटली। और बहुत फिलोसफर ने इसे कहा कि नो इट इज़ ए पॉजिटिव ब्लिस ऑल्सो। सफरिंग के बाद जो स्टेट आता है वो एक पॉजिटिव ब्लिस भी आता है। तो एक ने कहा कि इट कैन बी मिनिमाइज्ड, एक ने कहा कि इट कैन बी क्योर्ड, सिर्फ सफरिंग को क्योर किया गया। ओके, ना निगेटिव स्टेट, ना सफरिंग के स्टेट में, ना ब्लिसफुलनेस के स्टेट में। लेकिन एक तरह के फिलोसफर ने यह भी कहा कि जो है सफरिंग के बाद जो स्टेट हम लाएंगे लिबरेशन का, उसमें जो कि परमानेंटली देयर विल बी हैप्पीनेस, ब्लिसफुलनेस। ओके, तो 3 तरह के फिलोसफर हम लोग को इंडियन फिलोसफी में देखने मिल जाएंगे। ओके, सो कॉज ऑफ सफरिंग के बाद सेसेशन ऑफ सफरिंग। ओके, सेसेशन ऑफ सेसेशन ऑफ सफरिंग। अब सेसेशन ऑफ सफरिंग हुआ तो इसका पाथ भी है। अगर हमने कहा कि सेसेशन ऑफ सफरिंग, तो इस सेसेशन ऑफ सफरिंग का सबने अपने अपने तरीके से पाथ भी बताया कि इस तरह से चलोगे, इस तरह से जाओगे तो इस मंजिल पे पहुंचोगे, इतनी मंजिल पे पहुंचोगे, इस तरह। तो सबने कहा, चार्वाका से लेके पूरा माध्वाचार्य तक सबने कहा, वेदांत हो, जैनिज्म हो, बुद्धिज़्म हो, सांख्य दर्शन हो या फिर योग दर्शन हो, सबने अपने अपने तरीके से मेंशन किया सेसेशन ऑफ सफरिंग, दैट इज path that leads to the cessation of suffering। ओके, पाथ, तो इन्होंने पाथ भी बताया है। सो बेसिकली इंडियन फिलॉसफी हम लोग इन 4 चीज़ों में कंप्लीटली एक ओवरऑल व्यू दिए, एक ओवरऑल व्यू इसको हम कह सकते हैं इंडियन फिलॉसफी।
सो इंडियन फिलॉसफी ये है। और अगर हम बात करें फिर what I want to say that ये हमारा इंडियन फिलोसफी बेसिकली आई विल गिव यू एवरी टाइप ऑफ फिलोसफी, एवरी टाइप ऑफ आई विल डिस्कस एवरी टाइप ऑफ फिलोसफर्स, सो दैट बहुत एक्चुअली क्या होता है ना कि बहुत सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट आते हैं जो यानी कि फ़िलासफ़ी लेना चाहते हैं, लेकिन वो किसी कारणवश कन्फ्यूज़न वश कहते हैं कि नहीं वी आर नॉट, यानी कि समझ में नहीं आता है, या वट एवर दे से कि नो इट इज़ टफ सब्जेक्ट। इट इज़ नॉट ए टफ सब्जेक्ट। I am telling to all the students, including the engineering student or any background student, that it is not a tough subject. It is a very very easy subject. It is a, हम फिर से बोलते हैं, it is a very easy subject. Okay, क्योंकि it is only the study of the philosopher, और it is very easy के साथ साथ it is very interesting subject. Okay, और it is very very knowledgeable subject. Okay, as I have said that philosophy is the study of love of knowledge or love of wisdom. So तीन तरह होते हैं. ओके, फिलॉसफी एक तो इजी सब्जेक्ट है, इट इज़ नॉट ए हार्ड सब्जेक्ट. दूसरा, फिलॉसफी इज़ ए बेसिक सब्जेक्ट. बेसिक चीज़ जो होते हैं ना, वही चीज़ हम लोग फिलॉसफी में डिस्कस करते हैं. चाहे आप किसी का भी फिलॉसफी ले लीजिए, गांधी का फिलॉसफी ले लीजिए, मार्क्स का फिलॉसफी ले लीजिए, ये हम लोगों के भी सिलेबस में है. तो एकदम से हम लोग बेसिक चीज़ें डिस्कस करते हैं हम लोग फिलॉसफी में. ओके, और इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग के साथ इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑल्सो. ओके, इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड इट इज़ वेरी बेसिक सब्जेक्ट. सो ईजी के साथ साथ, इंटरेस्टिंग के साथ साथ important भी है यह philosophy. So any type of any background student, if they want to take philosophy as an optional subject, philosophy as an optional, they can take philosophy. Okay, हमारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अपना जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो ज्वाइन यानी कि द फिलॉसफी. ओके, सो एनी स्टूडेंट कैन ज्वाइन द फिलॉसफी for complete preparation of philosophy optional for civil services examination, and its fees is only 30,000 rupees. We have kept the fees at its minimum, and we will provide the quality at its maximum. Best quality we will try to provide that you can get anywhere. Okay, of course it is for the civil services examination, or you can say IS examination. Okay, IS examination. Philosophy option complete, and mind the word here we have mentioned complete. Complete means complete. Okay, सब कुछ इसमें डिस्कस कर देंगे कि हमारा जो कि है क्या कहते हैं, एक हम लोग कंप्लीट में आ गया. एक फुल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए सब्जेक्ट का. फुल एक्सप्लेनेशन हम लोग देंगे उसमें, ताकि आप जो सब्जेक्ट आखिर में जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो कम्प्लीटली आपको समझ में आ जाए और अच्छा से समझ में आए. दूसरी बात होनी चाहिए फुल एक्सप्लेनेशन के बाद क्लास नोट्स भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि एग्ज़ाम के समय वो आपको, जैसे मेंस एग्ज़ाम आप लोग देंगे तो वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी क्लास नोट. तो क्लास नोट्स इज ऑल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. तो वो भी हम लोग after discussing the topic we will make you to write the class note. That will help you a lot during the examination, mains examination, because our focus is that all students should get above 60% marks in the, that will be our focus, that will be our aim, and we will try our best so that most of the students can get above 300 marks or above 60% marks in the examination. We will try for that, and we will try and we will achieve that. Okay, we will try also and we will achieve them. So एक क्लास नोट्स हो गया. इसके बाद भी अगर किसी स्टूडेंट को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का मन कर गया, एक्स्ट्रा पढ़ने का उसको जुनून आ गया, तो उनके लिए भी हम लोगों ने यानी कि उन लोग के लिए एक स्टडी मटेरियल तैयार किया, जो बहुत सारे किताबों से लगभग जितने किताब आपको
चाहे इलाहाबाद के मार्केट में, चाहे दिल्ली के मार्केट में, कोई सा भी दिल्ली के मार्केट में, नई सड़क हो गया, मुखर्जी नगर हो गया, या फिर साउथ दिल्ली हो गया, या फिर ओल्ड राजेंद्र नगर हो गया, कहीं भी सारी किताबों का जो भी अच्छा टॉपिक, एक किताब में कहीं अच्छा टॉपिक नहीं मिलेगा। तो सारे किताबों का जो भी अच्छा टॉपिक रहेगा, ऑफकोर्स जो सिलेबस में है उससे हम लोगों ने पिक करके स्टडी मटेरियल बनाया है, ताकि वो हम स्टूडेंट को प्रोवाइड कर सकें, जिसको भी मन है अपना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा जाए। ऐसे क्लास नोट्स और फुल एक्सप्लेनेशन इट इज़ सफिशिएंट for the mains examination. Okay, and if you will study, if you will understand the topic very nicely in the class itself, you will not feel the need to study anything else, any book or any study material. It is in the class itself, it will be complete. Okay, we will discuss everything. Okay, so और उसके बाद जो कि है, उसके बाद फिर एग्ज़ाम के बाद हम लोगों ने कुछ ये टेस्ट सीरीज़ रखेंगे जब प्रीलिम्स के बाद। लेकिन पहले जो कि है, इन प्रिपरेशन के टाइम में, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रिपरेशन देयर विल बी 3 थिंग्स: फुल एक्सप्लेनेशन, एंड यू हैव द राइट टू आस्क एनी क्वेश्चन एंड एवरी क्वेश्चन, ओके, related to the topic discussed, related to the syllabus mentioned, and we will also discuss the last 50 years question. इससे क्या होगा ना, वी विल डिस्कस देम दैट हाउ टू राइट एंड व्हाट टू राइट, सो दैट इससे क्या होगा कि हमको पैटर्न का पता चलेगा कि किस तरह के पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसको भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, एवरीथिंग वी विल डिस्कस बेसिक वाइज, एवरीथिंग यानी कि स्टेप बाय स्टेप वाइज वी विल डिस्कस एवरीथिंग। ओके, सो फिलॉसफी का हम लोगों का जो मोटिव है कि कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ फिलॉसफी ऑप्शनल फॉर सिविल सर्विस, एकदम कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे, वन स्टॉप सेंटर बनाएंगे। नो नीड टू गो, यू विल नॉट हैव द नेसेसिटी टू गो एनीवेयर। ओके, एंड फिलॉसफी इज ए सब्जेक्ट ऑफ नेसेसिटी। ये कोई लग्जरी वाला सब्जेक्ट नहीं है कि बहुत हो गया अब जाके फिलॉसफी पढ़ेंगे, नहीं, ये बहुत ही नेसेसिटी वाला सब्जेक्ट है। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि चलिए क्या है ट्रुथ, क्या है, क्या हम, यानी कि ट्रुथ क्या है, ट्रुथ के बारे में डिफरेंट फिलोसफर जो कि हुए, बुद्धिमान लोग हुए, उन्होंने किस तरह से ट्रुथ को डिफाइन किया, उन्होंने किस तरह से ट्रुथ को अपनाया, किस तरह से उन्होंने ट्रुथ को हम लोगों को बताया, फिर अपनाया भी, बताया भी, किस तरह से डिफाइन किया, किस तरह से उन्होंने ट्रुथ को खोज किया। ओके, सो सर्च फॉर द ट्रुथ। फिर कॉज क्या है उसका, जो कि सफरिंग, उन्होंने सबने कहा कि कुछ न कुछ, किसी न किसी रूप में सफरिंग है। तो सफरिंग है तो उसका कॉज है, कॉज है तो उसका उपाय भी है, सेसेशन भी है, और सेसेशन है तो उसका एक पाथ भी है। सबने अपने अपने तरीके से उस सफरिंग को पाथ का, उन सफरिंग से पाथ that leads to the nirvana, that leads to the liberation, okay, that leads to the blissfulness state, or that leads to the complete cure of the suffering, no any blissfulness state, or that leads to the minimization of the suffering according to चारवाका। okay, तो इन सब बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे in the class। okay, and we have kept our fees at its minimum, that is only fees 30,000 rupees। 30,000 रुपीज़ में फुल प्रिपरेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज ऑप्शनल, फिलॉसफी ऑप्शनल फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, कंप्लीट प्रिपरेशन ओनली 30,000 में सब कुछ। कोरोना के टाइम में बहुत के फाइनेंशियली हार्डशिप हुआ, तो इनके लिए हम लोगों ने देखते हुए 30,000 रखा फॉर एवरीवन। और फिलॉसफी बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही रीजनिंग इसमें है, रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग है, और इजी सब्जेक्ट है, लॉजिकल है ये सब्जेक्ट, रीजनिंग है यानी कि रीजनेबल है, रीजनिंग इसमें करते हैं। तो यानी कि जस्ट रीजनिंग, जैसे रीजनिंग से मैथमेटिकल वाला रीजनिंग नहीं, रीजनिंग से जस्ट हमने जैसे कहा कि एक ट्रुथ है, ट्रुथ में हम लोगों ने पाया कि सफरिंग है, सफरिंग में पाया कि कॉज है, कॉज में पाया कि सेसेशन है। तो इस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट उसका रीजनिंग हम लोग कर लेते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल द थिंग
अबाउट द, और फीस हम लोगों ने रखा है 30,000। इफ़ एनी ऑफ द स्टूडेंट वेदर इट इज़ बैकग्राउंड, इसमें कोई मायने नहीं रखता है। एज फार एज द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का सिलेबस इज कंसर्न, देर इज नो एनी बैकग्राउंड, तो फीस ओनली रुपीज 30,000, दैट इज ओनली 30,000। और फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन ओनली रुपीज 30,000। Okay, this is the fees that we have given for complete preparation of the civil services optional philosophy as an optional subject. So जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है, जो भी स्टूडेंट, so they can call at this number 828, they can call at this number 828 769 2486. Okay, so they can call at this number. This is, if इस नंबर पे कॉल कीजिएगा तो आपका एडमिशन 30,000 में आपका पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन फिलॉसफी ऑप्शनल हो जाएगा। और फिलॉसफी ऑप्शन बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट, इजी भी है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी है। हर तरह से फिलॉसफी एक बहुत अच्छा ऑप्शनल है। और फिलॉसफी इज़ द स्टडी ऑफ द फिलॉसफर, इसमें डिफरेंट अच्छे अच्छे फिलॉसफर जैसे गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, शंकराचार्य, कपिल मुनि, ओके, रामानुज, चारवाका, सब अच्छे अच्छे फिलॉसफर को स्टडी करेंगे हम लोग। ओके, तो ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल जो कि है हम लोग डिस्कस करेंगे वेस्टर्न फिलॉसफी। ओके, वेस्टर्न फिलॉसफी का एक इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि वेस्टर्न फिलॉसफी में क्या क्या चीज़ होता है। ओके, आज जैसे इंडियन फिलॉसफी का एक ब्रॉड हेडलाइंस दिए हम लोगों ने, जैसे ब्रॉड हेडलाइंस दिए कि इंडियन फिलॉसफी में क्या है, तो उसी तरह कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेस्टर्न फिलॉसफी में क्या है। ओके, सो थैंक यू for watching, or thank you. If you will join, naturally you will be in better position than the others, because the fees is at its minimum and you will get complete preparation at its base. That I can guarantee. Okay, that I can guarantee. Okay, okay. So tomorrow मिलते हैं, और tomorrow वेस्टर्न फिलॉसफी को हम लोग, एक क्या है वेस्टर्न फिलॉसफी, जैसे आज इंडियन फिलॉसफी को देखें एक ब्रॉड आउटलुक, broadest outlook you can say, तो tomorrow we will discuss western philosophy कि western philosophy क्या है। थैंक यू।